Hello children, how are you? Today we are going to start with Standard 8 English Junction new chapter, that is chapter number 5. So today I am going to explain about this chapter. From this chapter there are some objectives for learning this chapter. So the name of the chapter is The Day the Viceroy Came. So what is there in this chapter? Before starting the chapter, I am like to explain you about the objectives why we are learning this chapter. So the objectives of learning this chapter are, in this the author, who is R.K. Lakshman of this chapter, so to introduce students to stories by R.K. Lakshman, he has written many chapters. So to introduce you to this person, famous personality, this story is given. Then the second point is to help familiarize with Indian writing, how the authors write and how they become popular and how the Indian writing they are using, that is mentioned in this chapter. Next is to understand the story from a child's perspective, means child के point of view से कैसे ये story effective है उसके बारे में इसमें दिया गया है. Then the lastly to identify the sequence of events in the text, कि how एक के बाद एक sequence दी जाती है story में. So to identify that sequence, this chapter is been introduced to you. So now let's first begin with the warm up exercise which is given in your textbook. Now in this one spidergram is given over. This is called a spidergram. You have to make a list of important events organized in your school. So first of all it can be sports day, then you can tell me which other events are being organized in our school, that is annual function, Janmashtami celebration, Diwali celebration. So there are many functions which the school holds. So this story is related to such type of event only, कि in a life of a child how one event happened and how did he experience it, कैसे उसको experience हुआ उसके बारे में दिया गया है. So we shall begin with the chapter now. That morning Gopal's mother took out a little brown coat with brass buttons from a wooden box and put it on him. This happened only on great occasions. He could smell camphor on the coat. Now इसका मतलब क्या हुआ कि एक उस दिन, जिस दिन ये इवेंट था, ओकेशन था, उस दिन गोपाल की मम्मी ने एक लाइट ब्राउन कोट निकाला विथ जिसमें ब्रास के बटन्स थे एक वुडन बॉक्स में से, और उसको पहना दिया उसमें. और ये कब होता था? खाली ग्रेट ओकेशंस, बड़े बड़े जब ओकेशंस होते थे तब ये उसको पहनाते थे. एंड उसको उसमें से किस चीज़ की स्मेल आ रही थी? कैम्फर. कैम्फर मतलब जो वो कपूर की गोलियां बीच में रखते हैं जिससे कपड़ों में कीड़े ना पड़े, उसकी स्मेल उसको कोट में आ रही थी. ही थॉट ही लुक्ड लाइक हिज फादर, और वो पहन के उसको कैसा लग रहा था? जैसे वो अपने पापा जैसा लग रहा है. एंड फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, और उसे लगा कि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है. देन ही प्राउडली वॉकड आउट ऑफ द हाउस, और एकदम प्राउड फील करते हुए वो बाहर, हाउस के बाहर निकला. एट स्कूल he joined the other children who were all bubbling with joy in their own best clothes. और फिर स्कूल जाके वो दूसरे चिल्ड्रन के साथ ज्वाइन हुआ, और जो बहुत खुशी से बातें कर रहे थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे. देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज पासिंग थ्रू द स्मॉल टाउन. अब वाइसरॉय किसको कहते हैं? हियर द मीनिंग इज गिवन. इन द पास्ट द मैन हु वॉज सेंट बाय अ किंग और क्वीन, जो किंग और क्वीन किसी आदमी को भेजते थे टू रूल अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री को रूल करने के लिए, उसको कहते थे वाइसरॉय. तो उनके वहाँ से वो स्मॉल टाउन के पास से गुजरने वाला था. एंड ही वॉज टू अलाइट एट द रेलवे स्टेशन. अलाइट मीन, सी द मीनिंग, इट इज़ गिवन गेट डाउन फ्रॉम अ व्हीकल. वहाँ पे उतरने वाला था वो रेलवे स्टेशन पे. एंड गेट इन टू अ रिचली डेकोरेटेड ओपन हॉर्स ड्रॉन कोच, और वहाँ से एक हॉर्स ड्रॉन एक कोच था, उसमें वो बैठ के जाने वाले थे. देन ही वुड एस्केप टू द हिल्स फॉर द समर इन अ स्पेशल कार. एंड फिर वहाँ से वो कहाँ चले जाएंगे? हिल्स में फॉर समर के लिए एक उनकी स्पेशल कार में. देन सर्क्यूलर्स हैड गॉन टू ऑल स्कूल्स मंथ्स इन एडवांस.
मतलब स्कूल्स को ये सर्कुलर पहुंच गया था कि ऐसे होने वाला है, आप लोग उस इवेंट के लिए रेडी रहना। पहले एडवांस में, बहुत महीने पहले ही उनको सर्कुलर पहुंच गया था। इंस्ट्रक्टिंग द अथॉरिटीज़, और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था? अथॉरिटीज़ दैट ऑल चिल्ड्रन शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड लाइंड अप ऑन आइदर साइड ऑफ हिज एक्सीलेंसी रूट टू चीयर एंड वेलकम। और क्या सर्कुलर में इंस्ट्रक्शन था? कि चिल्ड्रन को एकदम अच्छे कपड़े पहन के आना है और लाइन में खड़े रहना है ऑन बोथ द साइड्स। जहाँ से वो जाएंगे, हिज एक्सीलेंसी मीन्स अ टाइटल दिया जाता है उनको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं, उनके रूट के दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड उसको चीयर करने के लिए बच्चों को लाइन में खड़ा रखना है, वेलकम करने के लिए। So before moving on to the next page, I would like to ask you few questions on the understanding of this paragraph. In this, my first question is, what did Gopal's mother take out from wooden box? I would like to repeat my question. What did Gopal's mother take out from wooden box? Yes, Gopal's mother took out a little brown coat with brass buttons from a wooden box. My second question is, what did he do at school? अब स्कूल जाके उसने क्या किया? So at school he joined the other children who were all bubbling with joy in their own best clothes. My last question is, where would he escape? वो जो आने वाले थे वाइसरॉय, where would he escape? Yes, he would escape to the hills for the summer in a special car. Now let's move on to the next page of the chapter. You can see that Gopal here, he was going to school with a brown coat and brass buttons. The next is, the headmasters and teachers were in a state of nervous fear that something might go wrong on that day. और जब भी कुछ इवेंट होने वाला होता है तब हेडमास्टर्स और टीचर्स का एकदम टेंशन में होते हैं कि सब अच्छे से हो जाए। तो उनको लग रहा था अगर कुछ खराब गलत हुआ तो उस दिन। Then special training had been given to the children to participate in the great event. और कुछ लोग चिल्ड्रन को स्पेशल ट्रेनिंग, एवरी टाइम हमारे स्कूल में भी कभी कुछ फंक्शन होता है, दैट टाइम वी गिव यू ट्रेनिंग बिफोर मैनी डेज। तो वहाँ पे भी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी ग्रेट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। Then Gopal of course was quite unaware of the importance of his role and duty as he was being marched to the railway station along with the other children. फिर गोपाल को वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ दूसरे चिल्ड्रन के साथ ले जाया गया और उसको पता नहीं था उसका क्या रोल है, उसको क्या ड्यूटी करनी है, बट वो उसके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे चला गया। He was happy with the sweets distributed to celebrate the occasion and enjoyed the bright and cheerful mood in the school. Then what happened? He was very happy. क्यों खुश था? क्योंकि स्वीट्स बंटने वाली थी, टू सेलिब्रेट, ये ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ही ऑल्सो एन्जॉयड द ब्राइट एंड, उसका मूड बहुत ही अच्छा था, चीयरफुल एंड ब्राइट मूड जो स्कूल में था वो भी वो एन्जॉय कर रहा था। इवन द ड्रिल मास्टर वॉज स्माइलिंग, जो ड्रिल मास्टर थे हमेशा गुस्सा करते रहते थे, वो भी स्माइल कर रहे थे। ओके। At the railway station, the children were lined up according to their size, the better dressed ones in front rows. और क्या किया था, जो रेलवे स्टेशन पे थे लोग चिल्ड्रन को लाइन में खड़ा कर दिया एंड जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे जिन्होंने उनको फ्रंट रो में खड़ा किया। देन गोपाल वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ही इस चीज़ को लेके एक्साइटेड था कि क्या होगा, क्या करेंगे एंड ऑल। और उसके बाद द ड्रिल मास्टर मार्च्ड अप एंड डाउन प्राउडली, बहुत ही प्राउड फील करते हुए जो ड्रिल मास्टर थे वो मार्चिंग कर रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे। एंड एस इफ ही वॉज सुपरवाइजिंग एन आर्मी परेड, और उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे आर्मी परेड में लोग उसको सुपरवाइज करते हैं कि आपको ऐसे चलना है, वैसे चलना है, वैसे वो सुपरवाइज कर रहा था। इवन द हेडमास्टर कंसल्टेड हिम अबाउट द अरेंजमेंट्स, और जो हेडमास्टर थे उन्होंने भी उसको कंसल्ट किया, पूछा। कंसल्टेड मीन्स आस्क्ड फॉर सम इंफॉर्मेशन और एडवाइस, मीन्स उससे एडवाइस ली कि सब अरेंजमेंट्स ठीक है कि नहीं है वैसे।
Then every few minutes he looked at his watch, और थोड़ी थोड़ी देर में he was looking at his watch कि क्या हो रहा है and all, and announced the exact position of the approaching viceroy, और वो पोजीशन कहाँ पहुँचे हैं वाइसरॉय, उसकी पोजीशन अनाउंस करते जा रहे थे बार बार. he was announcing, बार बार देख रहे थे वॉच को, and then again he was announcing his position कि यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं. But an hour passed, but he was announcing, but then also 1 hour passed, ऐसे करते करते, without anything happening, but तब तक कुछ हुआ नहीं था. Then the children began to get restless, और अगर ज़्यादा देर तक बच्चों को ऐसी धूप में खड़ा कर दिया जाए तो what will happen, they will become very restless, कि बहुत थक गए थे. The drill master scolded the noisy ones, और ड्रिल मास्टर क्या करने लगे, अगेन he started scolding, गुस्सा करने लगे the noisy, जो आवाज़ कर रहे थे उनको, and went to find out the cause for the delay, और वहाँ पे उनको चुप बिठा के और वो गए कुछ इंक्वायर करने के लिए कि what is the cause, क्यों इतना डिले हो रहा था, लेट हो रहा था. Then as time passed it began to get hot, और धीरे धीरे धूप बढ़ रही थी, एंड हॉटनेस वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग. द होल ग्रुप स्टार्टेड टू ड्रूप. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रूप हियर, इट इज गिवन टू बिकम वीक और सैड, और खड़े खड़े थकान हो रही थी और वो बच्चे वीक फील करने लगे थे. वन बाय वन द टीचर्स सॉट द कूल शेड ऑफ ट्रीज, और धीरे धीरे टीचर्स ने क्या किया, बच्चों को ट्रीज कहीं हो आजू बाजू में उसके शेड में बिठाना शुरू किया. द चिल्ड्रन स्क्वैटेड ऑन द ग्राउंड इन ग्रुप्स एंड wilted in the heat. Now children squatted means, squatted का मतलब क्या है, sat on their heels, जैसे नीज पे हिल्स पे बेंड होके बैठते हैं वैसे with their knees bend करके वहाँ पे बैठने लगे. Then in groups मतलब ग्रुप्स बना के, and wilted in the heat. What is the meaning of wilted? It is फेल्ट वीक और टायर्ड, एकदम टायर्डनेस फील करने लगे, वीकनेस फील करने लगे, स्पेशली बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. और क्यों वो वीकनेस फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही गर्मी उन लोग को लग रही थी, हॉटनेस लग रही थी, इस वजह से. देन गोपाल वॉज बोर्ड, एकदम बोर हो गया कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे खड़े खड़े कोई भी इंसान है, ही विल गेट बोर्ड. सो ही वॉज, गोपाल ऑल्सो वॉज फीलिंग वेरी बोर्ड. एज ही लुक्ड अराउंड ही फेल्ट अ टिकलिश सेंसेशन ऑन हिज लेफ्ट लेग, और जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, ही फेल्ट अ टिकलिश सेंसेशन, मतलब कुछ चल रहा हो लेग पे तो कैसी फीलिंग आती है, दैट टाइप ऑफ सेंसेशन उसको लगने लगा उसके लेफ्ट लेग पे. ही वॉज स्टार्टल्ड to see a big black ant crawling up his leg, big black ant crawling up his leg. उसने क्या देखा, स्टार्टल मतलब एकदम सरप्राइज हो गया, क्या देख के, एक बड़ी सी ब्लैक एंट थी जो उसके लेग पे क्रॉल कर रही थी, चढ़ रही थी. ही जम्प्ड अबाउट एंड मैनेज टू शेक इट ऑफ, वो एकदम से डर के मारे जंप किया और उसको हिलाने की, दूर करने की कोशिश की. इट केम टूवर्ड्स हिम अगेन, बट देन आप लोग को पता ही होगा एंट्स कैसी होती है, अगर हम दूर करें तो वही रास्ते में वो वापस आती है, तो अगेन वो एंट उसकी तरफ आने लगी. देन नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज, आई विल लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पेज. नाउ इन दिस माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज गोपाल हैप्पी? नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाई वॉज गोपाल हैप्पी? Yes, why he was looking, he was happy with the sweets. Why he was happy? See here the answer is given. He was happy with the sweets distributed to celebrate the occasion and enjoy the bright and cheerful mood in the school. Now my next question is, what did the drill master do? What did the drill master do? Yes, the drill master scolded the noisy ones and went to find out the cause for the delay. My last question to you is, what did Gopal feel? Can anybody tell what did Gopal feel? Yes, what did he feel? He felt a ticklish sensation on his left leg. I hope children you would have understood these two pages. Now let's move on to the third page. In that, now what happened with him after he saw that ant? What happened? And the ant was again coming towards him. Then Gopal pushed it away
विथ अ स्मॉल ट्विग, वो छोटी सी ट्विग मतलब डंडी होती है जो गिर गई हो जो झाड़ पे से, वैसी टाइप की डंडी से उसने उसको पुश किया एंट को। बट इट रिटर्न थ्रेटनिंग हिम विथ इट्स एंटीना, और वो एंट को एंटीना होते हैं तो उसको गोपाल को ऐसे लग रहा था कि वो उसको डराते हुए अपने एंटीना खड़े करके उसकी तरफ आ रही है। ही बिकेम इरीटेटेड विथ इट, और वो एकदम इरिटेशन फील करने लगा, गुस्सा आने लगा उसको। एंड फ्लिक्ड इट अवे विथ अ लिटल मोर वायलेंटली, और उसने गुस्से से उस एंट को फिर जोर से फ्लिक्ड किया। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फ्लिक्ड? ही पुश्ड द एंट अवे सडनली एंड क्विकली यूजिंग हिज थंब एंड इंडेक्स फिंगर। मतलब हम लोग ऐसे धक्का मारते हैं जैसे, जोर से उसको उसने वायलेंटली उसको फ्लिक किया। देन द एंट लैंडेड फार अवे एंड रोल्ड इन द डस्ट, और फिर ये एंट क्या हुआ, कहाँ तक पहुँच गई, दूर, एंड रोल्ड इन द डस्ट, और गोल गोल हो गई डस्ट में, वहाँ मिट्टी थी उसमें चली गई। देन गोपाल वॉज प्लीज्ड, वो खुश हो गया अभी कि ये चली गई। ही वेटेड फॉर इट्स नेक्स्ट मूव विथ इंटरेस्ट, और फिर वो देखने लगा कि ये अब नेक्स्ट क्या करेगी ये एंट, उसके साथ देख रहा था कि उसका क्या मूवमेंट होगा। एंड द एंट इमीडिएटली मूव्ड टूवर्ड्स हिम, और फिर अचानक से वापस वो एंट उसकी तरफ आई, लाइक एन एनिमी टैंक इन अ बैटल फील्ड। जैसे एनिमी का टैंक आपकी तरफ आता हो, आपके एनिमी का टैंक, तो वो कैसे आता है, वैसे वो बैटल फील्ड में जैसे होता है वैसे ही वो एनिमी टैंक की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगी। देन द एंट सीम्ड सो एंग्री, और ऐसा लग रहा था कि वो एंट बहुत ही एंग्री हो गई है। फॉर अ मोमेंट गोपाल वॉज वरीड, और उसको उसकी एंग्रीनेस देख के गोपाल को चिंता होने लगी। ही हरीडली गैदर्ड अ हैंडफुल ऑफ सैंड एंड पोर्ड इट ऑल ऑन द अटैकिंग एंट, और उसने क्या किया, जैसे बच्चे करते हैं, हैंडफुल ऑफ सैंड वहाँ से रेत उठाई और उसके ऊपर पोर कर दी, वो जो अटैकिंग एंट थी उसके ऊपर। देन इट केम आउट ऑफ द टेम्पररी ग्रेव, और वो जो टेम्पररी उसके लिए वो ग्रेव घर जैसा बन गया था उसमें से वो बाहर आ गई। ग्रेटली पजल्ड बाय गोपाल्स न्यू ट्रिक, अब उससे उसको भी थोड़ा पजलनेस, ही वॉज वेरी पजल्ड गोपाल अपनी न्यू ट्रिक से। वॉट ही डिड, गोपाल फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ विक्ट्री एंड सिंपथी, और उसको लगा कि ये थोड़ा मेरी जीत हुई है और एकदम सिंपथी मीन्स फीलिंग, और थोड़ा उसको उसके लिए सिंपथी भी हो रहा था कि मैं उसको इतना परेशान कर रहा हूँ एंट को। देन ही जेंटली पिक्ड अप द कन्फ्यूज्ड एंट ऑन अ ट्विग, और वो उसने क्या किया, उसको थोड़ा उस पर दया आई इसलिए उसने उस एंट को उस ट्विग के ऊपर उठा लिया। यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज द ट्विग, और इसके ऊपर उसको एंट को उसने चढ़ा दिया। इट क्लंग टू इट एंड रिमेन्ड स्टिल एज इफ एडमिटिंग डिफीट, और वो एंट उसको इस ट्विग पे चिपक गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी हार मान ली हो। देन वॉट हैपन, देन इट बिगैन टू मूव केयरफुली अलोंग द ट्विग, और फिर धीरे धीरे इधर से उधर वो ट्विग पे घूमने लगी एंट। इट केम वेरी क्लोज टू हिज फिंगर एंड वुड हैव क्लाइम्ड ऑन टू हिम इफ ही हैड नॉट लेट गो हिज फिंगर एट द मोमेंट एंड हेल्ड द स्टिक बाय द अदर एंड। फिर गोपाल ने क्या किया, जैसे वो उसके साथ खेलने लगा हो, वो एंट उसकी फिंगर की तरफ, जहाँ उसने ट्विग को पकड़ा था, फिंगर की तरफ आने लगी, और हैव क्लाइम्ड ऑन टू हिम, अगर उसने वहाँ से हाथ नहीं हटाया होता तो उसके ऊपर वो चढ़ जाती। इफ़ ही हैड नॉट लेट गो हिज फिंगर, बट उसने क्या कर दिया, उतने में जब तक वो वहाँ पहुँची उसने वो हाथ ये दूसरे तरफ ट्विग को पकड़ लिया, एंड दोनों साइड एक हाथ को वहाँ से उठा के दूसरे साइड में उसने अब दूसरे हाथ से पकड़ लिया। After that what happened? The ant suddenly faced an abyss. Abyss means, see the meaning, it is given a deep empty hole. वहाँ पे वो ट्विग में एक होल था, उस तरफ वो बढ़ी, बट उसको पता चल गया कि वहाँ पे होल है। Then it turned round, और वहाँ से वो वापस मुड़ गई, एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड्स गोपाल फिंगर, और वापस वो गोपाल के दूसरे तरफ जो उसने हाथ रखा था उस फिंगर की तरफ बढ़ने लगी। बट गोपाल रिपीटेड द ट्रिक, बट फिर उसने गोपाल को वो मज़ा आने लगा तो वो ट्रिक उसने वापस रिपीट की। शिफ्टिंग हिज फिंगर इन टाइम टू द अदर एंड ऑफ द स्टिक, अगेन वो फिंगर से वो दूसरी ओर से उसने पकड़ लिया वो स्टिक को। बट
ही लाइक दिस गेम एंड इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये गेम उसको अच्छा लगा। फिर जैसे ही वो उसके फिंगर की तरफ पहुंचती वो एंट, तो वो दूसरी ओर से वो ट्विग को पकड़ लेता। वापस ये जो सिलसिला था वो शुरू ही रहा, फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज गोइंग ऑन। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, आफ्टर दैट देन सडनली ही हर्ड अ ब्लेयर ऑफ ट्रम्पेट्स एंड द बैंड बिगैन टू प्ले। फिर अचानक से उसको किस चीज़ की आवाज़ आई? ब्लेयर मीन्स अ लाउड अनप्लेजेंट साउंड, जोर से आवाज़ आने लगी ट्रम्पेट्स की, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड द बैंड बिगैन टू प्ले, और बैंड बजने लगा। इट मीन्स वॉट वॉज अंडरस्टूड कि वो वाइसरॉय आ गए हैं, दैट्स वाई। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रश, बहुत ही भीड़ हो गई थी वहाँ पे। एंड bustle around him. What do you mean by the word bustle? Bustle means busy and noisy activities. बहुत ही busy activities वहाँ पे होने लगी, जोर जोर से आवाज़ें आने लगी and all. Then he turned his attention from the ant to his friends. और वो जब वो ant के साथ खेल रहा था, वहाँ से उसका अटेंशन कहाँ चला गया? अपने फ्रेंड्स की ओर। हाथ में वो डंडी में वो एंट थी और उसका अटेंशन चला गया उसके फ्रेंड्स की तरफ। दे वेर ऑलरेडी एट द एज ऑफ द पेवमेंट स्टैंडिंग इन अ लाइन, और ऑलरेडी वो बच्चे कहाँ पहुँच गए थे? उन लोग जहाँ शेड के नीचे बैठे थे, वहाँ से बच्चे रोड के दोनों तरफ, पेवमेंट जो होता है फुटपाथ पे, वहाँ पे लाइन बना के दोनों साइड खड़े हो गए थे। एंड ही वॉज स्टिल अंडर द ट्री ओनली प्लेइंग विद दैट एंट एंड द ट्विग। ओके, ही वॉज अबाउट टू ड्रॉप द ट्विग एंट एंड ऑल। ये मतलब ये सब कुछ वो नीचे फेंकने वाला था। उतने में क्या हुआ? एंड रीजॉइन हिज फ्रेंड्स व्हेन ही डिस्कवर्ड, और वो जो ट्विग और एंट के साथ खेल रहा था वो नीचे फेंकने वाला था और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने वाला था। उतने में उसको क्या पता चला? व्हेन ही डिस्कवर्ड मीन्स उसको ये पता चला। what did he understood, what did he discovered from that? So what he discovered, to his horror, एकदम शॉक हो गया था, that the ant which ought to have been somewhere near his finger was now nowhere to be seen. अब उसको क्या शॉक फील हुआ, एकदम हॉरर क्यों हो गया कि जो एंट जो थी, जो उसके फिंगर के आसपास होनी चाहिए थी, वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और उसको क्या डर लगने लगा कि कहीं वो उसके कहीं बॉडी में कहीं पे चढ़ ना गई हो, इसीलिए। सो ही वॉज फीलिंग कि उसके फ्रेंड्स वहाँ चले गए, बट ही डिडंट सी द एंट एनीवेयर, इसलिए वो डर गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, दैट इज व्हाट हैपेंड देन। ही शिवर्ड विथ फ्राइट, एकदम डर गया और शिवर होने लगा। एट द थॉट, ये सोच के, दैट इट कुड हैव क्लाइम्ड ओवर हिज फिंगर एंड गॉट लॉस्ट इन हिज स्लीव्स, कि वो एकदम ये सोच के डर गया कि वो शायद उसके फिंगर्स पे चढ़ गई होगी और वहाँ से वो स्लीव्स में चढ़ के अंदर स्लीव्स में उसके बॉडी में चढ़ गई होगी। देन ही लुक्ड फॉर इट ऑल ओवर हिज कोट एंड ऑन द ग्राउंड, और वो ढूंढने लगा उस एंट को पूरे कोट में और नीचे कहीं पे दिखे तो। इट हैड कम्प्लीटली वैनिश्ड मतलब एकदम गायब हो गई थी। उसको पता ही नहीं चला कि वो एंट कहाँ चली गई, बट वो इस चीज़ से डर रहा था कहीं वो उसके फिंगर से उसके कपड़ों में चढ़ के उसके बॉडी में चढ़ ना जाए और उसको काट ना ले। दैट्स वाई ही वॉज फ्राइटन। देन व्हाट हैपन, विथ एन अनईजी फीलिंग, और बहुत ही अनईजी फील कर रहा था, ऐसे फीलिंग के साथ व्हाट हैपन, ही जॉइंड द ग्रुप, और धीरे धीरे वो अनईजीनेस के साथ उसने वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बट क्या हुआ, हिज एक्सीलेंसी द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी गॉन, और इस सब चीज़ में जिस इवेंट के लिए वो वहाँ पे पहुँचा था वो इवेंट मिस हो गई, इसीलिए उसको पता ही नहीं चला। तो जिस इवेंट के लिए ही हैड बीन देयर, दैट इवेंट वॉज मिस्ड बाय हिम, एंड एज सुन एज ही जॉइंड, टिल दैट टाइम द एक्सीलेंसी मीन्स द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम देयर। देन व्हाट हैपन, द गैदरिंग डिस्पर्स्ड रैपिडली, और धीरे धीरे सब जो गैदर हुए थे वो अपने अपने घर जाने लगे। आई सॉ हिम सो क्लोज, और वो बोल रहा है गोपाल कि आई सॉ हिम, मैंने इसको इतनी नज़दीक से देखा था। अनाउंस्ड वन ऑफ हिज
फ्रेंड। गोपाल को किसने बोला ये आई सॉ हिम सो क्लोज, जो गोपाल का फ्रेंड था वो बोला कि इतने नज़दीक से, किसको? सॉ हिम सो क्लोज मीन्स वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया को बहुत ही नज़दीक से देखा। आई लाइक द हॉर्सेस सेड अनदर, और दूसरा क्या बोलने लगा? जिस हॉर्स कार्ट में वो था, बड़े से हॉर्स के चैरियट में, उसमें ही इज टेलिंग कि मुझे वो हॉर्सेस बहुत ही अच्छे लगे। देन अब ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी द ड्रिल मास्टर रिमाइंड। अब ड्रिल मास्टर क्या बोले कि ही वो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है और वो इतने अच्छे से ही ठाट माट से ही रहेंगे एंड ऑल, उन्होंने बोला। देन व्हाट हैपन? एट होम हिज मदर रिमूव्ड हिज कोट, और जैसे ही गोपाल घर गया उसकी मम्मी ने उसका वो कोट निकाला, फोल्डेड इट, फोल्ड कर दिया, एंड पुट इट बैक इन द वुडन बॉक्स, जहाँ से निकाला था पहले वुडन बॉक्स में से, उसी में वापस रख दिया। और उन्होंने फिर क्या पूछा? शी आस्क्ड डिड यू हैव अ गुड टाइम? वो उसको पूछ रही है गोपाल को कि इवेंट कैसा रहा, अच्छा टाइम बिताया आपने? तो गोपाल इज टेलिंग येस। डिड यू हैव अ गुड लुक एट द वाइसरॉय? फिर अगेन उसकी मम्मी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने वाइसरॉय को एकदम नज़दीक से अच्छे से देखा? तो ही इज टेलिंग नो, उसने नो बोला। तो मम्मी इज आस्किंग व्हाई? तो ही इज व्हाट गोपाल इज रिप्लाइंग, आई वॉज बिजी एंड व्हाट ऑल थिंग हैपेंड यू ऑल नो इन द स्टोरी, किस चीज़ में वो बिजी था। So this is the end of this chapter story. It is written by R.K. Lakshman, as I told you first. Now I would like to tell you something, a short brief about R.K. Lakshman. His birth was in 1921 and he died in 2015. He was an Indian cartoonist, एक इंडियन कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर, मतलब ऐसी फ़नी स्टोरीज़ वगैरह वो लिखते थे। एंड ही क्रिएटेड द डेली कॉमिक स्ट्रिप, और एक ये कॉमिक स्ट्रिप उन्होंने क्रिएट की थी, यू सेड इट, ये नाम था उसका, यू सेड इट, विच chronicled Indian life and politics through the eyes of the common man। एक कॉमन मैन के आंखों से कैसी इंडियन लाइफ है और पॉलिटिक्स कैसे है वो दिखता था उसमें। एंड लक्ष्मण रोट न्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने बहुत ही सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, एसेज लिखे हैं एंड ट्रैवल आर्टिकल्स लिखे हैं, सम ऑफ विच अपीयर्ड इन द डिसॉर्टेड मिरर, ये एक बुक उसका नाम है जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है। ही ऑल्सो रोट द नॉवेल्स, और उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी। एक नॉवेल का नाम है द होटल रिवेरा एंड द मैसेंजर, ये दो नॉवेल्स उन्होंने लिखी। एंड एन ऑटोबायोग्राफी लिखी, द टनल ऑफ टाइम, ये एक ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी थी। सो यू नो चिल्ड्रन, R.K. Lakshman is writing such funny type of stories for children. Okay. So I hope you would have understood this chapter. See, watch the video properly what I have explained in Hindi also, and read the chapter twice. You will understand the whole story. So thank you dear children.